Hello dear students, today we are going to start the curvilinear motion. Okay, so till now we have seen the rectilinear motion. Now here we will study the curvilinear motion. So what is meant by curvilinear motion? When particle is moving in a curved path at any instant of time, its velocity is directed in the tangential direction, okay, of the path of particle, but acceleration of particle will have some other direction. Means, what is meant by curvilinear motion? If the motion of particle is along the curve or like this, okay. So this is, suppose this is particle P and this particle P is traveling this path. So this path is nothing but the curve, okay. So this is the curvilinear motion. Now its position vector R. Suppose this particle P, this is x-axis, this is y-axis. So the coordinates of this particle are x and y. So position vector R bar is equal to xi plus yj. Okay. So what is meant by curvilinear motion? Motion along a curved path is called as the curvilinear motion. Just like projectile motion is curvilinear motion. A ball thrown by cricketers is also the example of curvilinear motion. So this is the position vector. Now differentiate with respect to t. So dr by dt is equal to dx by dti plus dy by dtj. Okay, so what is x and y? X is the position of particle in x direction and this is the position of particle in y direction. So dx by dt is vxi plus vyj and this is v. Okay, now again differentiate this with respect to t. So dv by dt is equal to dvx by dti plus dvy by dtj. Okay, so dv by dt is acceleration, so dvx by dt is axi plus ayj. So what is Vx? It is the velocity in x direction, velocity in y direction, acceleration in x direction and acceleration in y direction. So these components are called as rectangular component. Okay, this component is called as rectangular component or Cartesian coordinates. Cartesian coordinates. Okay, so what is rectangular component? Actually there are three ways to study the curvilinear motion. One is rectangular component, another is normal and tangential component, and third is radial and transverse component. So these are the components where we can analyze the curvilinear motion of particle by resolving velocity and acceleration of the particle into their components. ठीक है, तो ये तीन फॉर्म है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि जैसे कि देखो ये व्हाट इज एक्स एंड वाई, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है. ठीक है, तो हर एक वेलोसिटी कंपोनेंट्स रहेंगे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन रहेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, और पोजीशन रहेंगी. ठीक है, सो दिस इज द कर्विलिनियर मोशन in rectangular components. We will see the numericals in rectangular components.
देखिए एक न्यूमेरिकल है, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए कर्व्ड पाथ गिवन बाय x is equal to 4t and y is equal to 4t square, sorry 2t square. Determine the equation of path of the particle. ठीक है, determine the equation of path of the particle. So we have to determine here the equation of path means in y का इक्वेशन रहेगा इन द फॉर्म ऑफ x और x का इक्वेशन रहेगा इन द फॉर्म ऑफ y. ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे x इज इक्वल टू 4t दिया है, सो t इज इक्वल टू x बाई 4, तो वो हम y में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 16. ये मैंने यहाँ पे पुट किया है t की जगह पे. ठीक है, तो ये रहेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y. ठीक है, सो वेरी सिंपल. पाथ इक्वेशन अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला है तो यू हैव टू फाइंड आउट x इन द फॉर्म ऑफ y और y इन द फॉर्म ऑफ x. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज the motion of particle in xy plane is defined by x is equal to t square plus 8t plus 4, t square plus 8t plus 4, and y is equal to t cube plus 3t square plus 8t plus 4, where x and y are in meters and t is in second. Find the resultant velocity and resultant acceleration of particle at time t is equal to 0 and t is equal to 2. Okay, at t is equal to 0 and t is equal to 2 सेकंड में हमको velocity and acceleration find करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले Vx और Vy फाइंड करेंगे. सो Vx इज क्या रहेगा, इसको हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, सो इट विल बी 2t प्लस 8. इट इज़ Vy 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8, राइट. नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. So we will get x, it is 2, ay is 6t plus 6, right. At t is equal to 0, Vx is equal to 8, Vy is equal to 8. Okay, so V is equal to 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. कैलकुलेट दिस, कितना आता है आंसर. इट इज 11.31 मीटर पर सेकंड. देन x इज 2, ay इज 6, सो a इज इक्वल टू, देखिए v क्या रहता है, इट इज़ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर. ए क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, राइट. सो ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. इट विल बी 6.32 meter per second square. Now at t is equal to 2 second. ठीक है, t is equal to 2 second. Then again find Vx. 2 into 2 plus 8, it is 12. Ax is equal to 2. ठीक है, Vy is equal to क्या रहेगा 3 into 2 square plus 6 into 2 plus 8.
इट इज़ कैलकुलेट कितना आता है, देखिए आंसर। ट्वेल्व प्लस 12 प्लस 8, it is 32, and ay is 6 into 2 plus 6, it is 18. Again v is equal to, it is 12 square plus 32 square, it is 34.17, it is 34.17, yes, 34.17 meter per second. A is equal to 2 square plus 18 square, it is 18.11, okay, meter per second स्क्वायर, राइट। तो हमने यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड किया, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड किया है। यू हैव टू ऑल्सो फाइंड द एंगल्स, ठीक है। अभी इसका एंगल अगर आपको फाइंड करना रहा हर एक चीज़ का, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सब एंगल भी आपको फाइंड करने हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। अगर आपको रेक्टिलिनियर मोशन आता है तो ये भी आ जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं, एक्स और वाई, वहाँ पे सिर्फ एक्स था, यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द मोशन ऑफ पार्टिकल ए एंड बी इज डिफाइंड बाय देयर पोजिशन वेक्टर। यहाँ पे पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ए पॉइंट का इट इज 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6i प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1j मीटर, और एक आरबी का दिया हुआ है, इट इज़ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2i प्लस 11t प्लस 3j, ठीक है। दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एंड दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ बी पार्टिकल, okay. Suppose their motions are like this, ठीक है। ये पार्टिकल A है और ये पार्टिकल B है, ठीक है। तो आपको उन्होंने पूछा है कि वो कब और कहाँ मीट होंगे। सपोज वो यहाँ पे मीट होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ द y कोऑर्डिनेट। सो ये क्या रहेगा, ये x है, ये y है, इसका ये x है और ये y है, ठीक है। सो वेयर डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल कोलाइड्स। तो पार्टिकल कब कोलाइड होंगे, जब दोनों का पोजीशन सेम रहेगा, ठीक है। आर ए बार इज इक्वल टू आर बी बार, राइट। तो उसका एक्स और वाई भी, मतलब दोनों का एक्स एक्स सेम रहेगा और वाई वाई सेम रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर ए इज इक्वल टू आर बी, मतलब क्या, 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6i प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1j इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2i प्लस 11t प्लस 3j, ठीक है।
सो इक्वेट द करस्पॉन्डिंग आई एंड जे कोएफिशिएंट, ठीक है, हमको क्या करना है, आई कोएफिशिएंट और जे कोएफिशिएंट इक्वेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आई कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, लेट्स इक्वेट आई 2t स्क्वायर, लिखती हूँ मैं, 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। सो ये 2t स्क्वायर और ये t स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर रहेगा, 4t, ये 2t इधर आएंगे तो वो 2t हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है, t की वैल्यू हमको मिलेगी it is 1 2 sorry 8 sorry ये माइनस रहेगा, -8 आता है तो t की वैल्यू आती है 2 सेकेंड और -4 सेकेंड, तो हम यहाँ पे 2 सेकेंड, उन्होंने पूछा कि कब और कहाँ पे, ठीक है, कब यानी क्या, आफ्टर 2 सेकेंड दे कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है। नाउ वेयर, अभी वेयर यानी क्या, वो कहाँ पे कोलाइड होंगे, ठीक है, वो कहाँ पे कोलाइड होंगे, ठीक है। हम तो टी की वैल्यू यहाँ पे आर ए और आर बी में पुट कर देते हैं। सो आर ए इज इक्वल टू, देखना कितना आता है, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4t सॉरी प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6 आई प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1 j. So calculate this. It is 4 into 2 8 plus 8 16 minus 16. So ये आता है 10 I. It will be 4 it is 25 j. ठीक है. Similarly we will find RB. RB is equal to 2 square plus 2 into 2 plus 2 I plus 11 into 2 plus 3 j. It is 10 I 25 j. ओके, सो यहाँ पे आंसर आपको मिला है, दे कोलाइड आफ्टर और एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और यहाँ पे क्या, दे कोलाइड वेयर कहाँ है, एट 10 and 25, ठीक है। सो व्हाट इज 10 and 25, हमने यहाँ पे एक इसका और इसका पाथ दिखाया था, ठीक है, तो ये रहेगा 10 and दिस इज 25, तो यहाँ पे वो कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई से 10 मीटर डिस्टेंस पे और एक्स से 25 मीटर डिस्टेंस पे। और एक न्यूमेरिकल लेंगे हम इसके ऊपर, ये a particle moves along the path r is equal to r is equal to 8t square I plus t cube plus 5j meter. Okay, where t is in second, determine the magnitude of particle velocity and acceleration at t is equal to 3 second. ठीक है, t is equal to 3 second. where
मतलब क्या, दिस इज x एंड दिस इज y. सो x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 5. सो इट इज़ vx इज इक्वल टू क्या रहेगा 16t. vy इज इक्वल टू 3t स्क्वायर. ax क्या रहेगा 16, ay इज 6t. नाउ एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, vx is 16 into 3, it is 48 meter per second. vy is 3 into 3 square, it is 27 meter per second. So v is equal to 48 square plus 27 square, it is 48 square plus 27 square, it is 55.07 meter per second. Now we'll find acceleration. ax is 16 meter per second square, sorry ये meter per. ay is 6 into 3, 18. So acceleration at t is equal to 3 second is 16 square plus 18 square. It is 24.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ये रहेंगे, ये रहा आंसर और ये रहा आंसर. ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपको पूछेंगे, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. इसका प्रैक्टिस कीजिए.